محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر۔ نو منتخب ضلع ٹیارس صدر پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمن ایم ایل اے جیون ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی، ایم ایل اے شکیل عامر، بیکالا گنیش گپتا، آکولا للیتا، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجری گوردھن نے دی مبارکباد۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی بودھن میں منی اسٹیڈیم کے قیام کے لیے ریاستی وزیر سرینیواس گوڈ سے ملاقات و نمائندگی۔ سابقہ ایم پی پنڈت نارائنا ریڈی کی برسی کے موقع پر شہر کے ویمنس کالج و دھرمارام میں تقریب کا انعقاد و پیش کی گئی نئی خراج عقیدت۔ مرکزی بی جے پی حکومت کے پیش کردہ بجٹ صرف امیروں کے لیے فائدہ مند، غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں، ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی۔ صدر ضلع ٹیارس کی حیثیت سے جیون ریڈی کی حلف برداری تقریب ملتوی، نئی تاریخ کا جلدی ہوگا اعلان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی بجٹ 2022-23 سے تلنگانہ کو بڑی مایوسی، مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سالانہ بجٹ سے ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام کو خاطر خواہ نہ ہونے کا ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی بجٹ 2022-23 سے تلنگانہ کو بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ 40 لاکھ کروڑ کے بجٹ میں ریاستی تلنگانہ کو 1 روپیہ بھی نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ مرکز میں موجود نریندر مودی حکومت تلنگانہ حکومت کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کا اظہار کیا۔ دلت بندھو کے قابل شعبہ جات کی شناخت کرے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ نچلے سطح سے زندگی گزارنے والے خاندانوں کی ترقی کے لیے اور ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ریاست تلنگانہ کی حکومت نے دلت بندھو کا آغاز کیا، تاکہ دلت طبقے کے افراد خوشحال زندگی گزار سکے۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بتایا کہ اسکیم کو 100% کامیاب کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ دلت بندھو کی شعبہ جات کی شناخت کرنے کے لیے ٹیموں سے مقامی سطح پر سروے کروایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ضلع کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ دلت طبقے کے افراد کن کن شعبوں میں تجربہ رکھتے ہیں اور ان کی مکمل جانکاری کے علاوہ شہر و موضع جات میں بھی شعبہ جات قائم کرنے کے متعلق جانکاری حاصل کریں۔ ان کی تیاری سیمنٹ، بریکس، وال پول، زیروکس، ڈی ٹی پی سینٹر، موبائل کے اسپیئر پارٹس اور دیگر شعبہ جات کو قائم کرے اور آمدنی و نقصان سے بھی متعلق تفصیلات حاصل کرے۔ ضمن میں عہدیداران تمام تفصیلات یکجا کرتے ہوئے کلکٹریٹ کو فائل بھجوائے، باتجا آخری فہرست تیار کرے۔ اس پروگرام میں جوائنٹ کلکٹر چندر شیکھر، ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا و دیگر محکمہ جات کے عہدیداران موجود تھے۔ مرکزی عام بجٹ سے عام آدمی کا تعلق نہیں، مرکزی بجٹ 2022 صرف امیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو اور دلت طبقے کے ساتھ کی گئی ناانصافی، کانگریس سینئر قائد سید قیصر کا اظہار۔ 1 فروری 2022 کو بھارت کا بجٹ سیشن تھا اور بجٹ پیش کیا گیا۔ بھارت کی فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن نے اس بجٹ کو پیش کیا۔ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو بالکل مخالف ہے مائنورٹیز ہے، مخالف SC/ST ہے، مخالف یوتھ ہے، مخالف انمپلائڈ نوجوان کے خلاف کا ہے، اور یہ صرف تائیدی انڈسٹریلسٹوں کا ہے
अमीरों का बजट है ये, कोई गरीबों का बजट नहीं होता, गरीबों के लिए बजट नहीं होता। यहाँ पर खुले तौर पर बता दिया गया। क्या बजट आपने माइनॉरिटीज को दिया गया, SC/STs को दिया गया, डेवलपमेंट के वास्ते खास तौर से यूथ के डेवलपमेंट के क्या बजट दिया गया, ये हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के निज़ामाबाद के MP अरविंद साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि हल्दी बोर्ड को तुम कायम करते हो, राइटिंग में लिख के दिया था बॉन्ड पेपर पर, वो हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? कौन खा गया हल्दी बोर्ड को? जाकरनपल्ली का एयरपोर्ट के वास्ते पैसा बजट सैंक्शन करते बोले, कहाँ पर जाकरनपल्ली का दूसरा एयरपोर्ट निज़ामाबाद का स्टार्ट हो रहा है? रेलवे निज़ामाबाद से कितनी ट्रेनों को स्टार्ट करने का वादा किया गया, बताइए अरविंद साहब, आप क्या काम कर रहे हो? निज़ामाबाद के MP का ये हाल है। और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। कल तक इनके साथ में थे, जब सर पे घूसा पड़ा एक तो उनके ठिकाने इनको याद आ गए। ये बोल रहे हैं कि BJP ये ऐसा मुखालिफ है, ये ऐसी मुखालिफ बजट लेके आई, ये गलत बजट है, वैसा ऐसा। जब तक इससे पहले क्या कर रहे थे 3 साल 3.5 साल से आप? इनके साथ तो सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मजा मस्त कर रहे थे। और आज ये तुम्हारे को जबरदस्त से घूसा सर पे रखा तो तुम्हारे ठिकाने याद आ गए तुम्हारे को। ये BJP या TRS दोनों एक ही तो उस सिक्के के 2 रुख है। आवाम को चाहिए कि एंटी बजट जो किया गया है SC/STs के, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ का बजट है, ये काबिल कबूल बजट नहीं है, ये पैसे वालों का बजट है। लिहाजा हुकूमत आने वाले तमाम नौजवानों को चाहिए और तमाम अपने भारत के नागरिकों को चाहिए कि ये हुकूमतों को खाड़ फेंके, ऐसी हुकूमत लेके आए जिससे कि कांग्रेस हर तबके को लेकर साथ चलती है, हर इंसान के साथ, हर नौजवान के साथ, ज़ईफ़ बच्चों के हर एक के साथ रहती है। ये हमेशा इंसानियत का काम करती है। कांग्रेस को लेके आके कांग्रेस को जिताएंगे तो आगे भला होगा। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर यूथ कांग्रेस की जानिब से बरहमी का इजहार, वो क्या मरकजी हुकूमत का लामती पुतला नजर आतिश। निजामाबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से आज मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनाक़द किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी रामाराटी गोपी ने शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के अहम शख्सियतों की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने पर बरहमी का इजहार किया और सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए मजहबी सियासत करने पर बरहमी का इजहार किया। इसी तरह इस एहतजाज में सीनियर कांग्रेस कायद अबूद बिन हमदान व मोइन यूनुस ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत की नाकामयाबी पर बरहमी का इजहार किया और मरकजी हुकूमत की जानिब से इस तरह पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत का लामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर इनके हमरा अमीर नवाज अंसारी, आसिम व दीगर मौजूद थे। PUC कमेटी चेयरमैन हार्मोन MLA जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, बोधन रुकन असम्बली शेकिल आमिर वो दीगर मशहूर शख्सियात ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, ZP चेयरमैन विठल राव, जिले के MLAs MLCs ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इस प्रोग्राम में निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, बोधन रुकन असम्बली शेकिल आमिर, तेलंगाना स्टेट विमेंस फाइनेंस कमीशन आकुला ललिता व दीगर ने शिरकत करके शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुस्तकबिल में मस्जिद आला ओहदे पर फायज होकर जीवन रेड्डी ताहयात तक अवामी खिदमत करने का इजहार किया। सदर जिले TRS की हैसियत से जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब मुलतवी। रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी को सदर जिले TRS नामजद किया गया है। 3 फरवरी को मिस्टर जीवन रेड्डी की कलेक्ट्रेट ग्राउंड निजामाबाद पर बड़े पैमाने पर हल्फ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था। हल्फ बर्दारी तकरीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और MLC के कविता मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे थे, लेकिन TRS जराये के मुताबिक MLC के कविता कोरोना से मुतासर होने की बिना पर मिस्टर जीवन रेड्डी की सदर जिले TRS की हैसियत से हल्फ बर्दारी तकरीब को मौखर कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने TRS पार्टी को अवामी सतह पर मुस्तहकिम करने के लिए सदर जिले TRS की जिम्मेदारी अराकीन असम्बली को तफवीज़ करने का फैसला किया। जिले निजामाबाद से रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी के नाम को खतियत दी गई और इनके हल्फ बर्दारी तकरीब को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का फैसला किया गया ताकि पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ साथ अवाम में बेहतर पैगाम दिया जा सके। खादिमीन उम्मत नांदेड़ की जानिब से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम की नमाज की तक़सीम अमल में लाई गई।
خادمین امت ناندیڑ کی جانب سے منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام 15 کے تحت نتائج کا اعلان کیا گیا۔ بھینسہ کے اسکولوں میں سے نوبل ہائی اسکول، اسلامی ہائی اسکول، اقرا ہائی اسکول، الفلاح ہائی اسکول، کریسنٹ ہائی اسکول، الرفات ہائی اسکول اور گورنمنٹ ZP ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے لیکچرر سیریز، مضمون نویسی، خوش خطی مقابلہ، ڈرائنگ مقابلہ، کوئز مقابلوں میں حصہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان مقابلوں میں اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو 30 جنوری 2022 کو مرکزی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناندیڑ میں انعامات دیے گئے تھے۔ بعثت تعلقے سے ایوارڈ کے لیے مثالی معلم میں جناب محمد اظہار صاحب، کرسپونڈنٹ الفلاح ہائی اسکول کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مثالی معلمہ کے لیے محترمہ فردوس فاطمہ، اسلامیہ ہائی اسکول مدارس سے مثالی علماء میں سے مولانا محمد شاہد غفران قاسمی، محتمم جامعہ العربیہ بھینسے کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مثال و بے باک اور سماجی خدمات انجام دینے والے صحافی میں سے روزنامہ سیاست مدھل کے تجمل احمد کو شاندار انداز میں شال پوشی کرتے ہوئے مومنٹو و سند سے نوازا گیا۔ خادمین امت کی ٹیم میں خاص طور پر ضلع آرگنائزر محمد اظہر الدین اور عبدالباسط صدیقی نے تمام ایوارڈ یافتگان احباب کو مبارکباد پیش کی۔ ضلع TRS صدر کے طور پر منتخب ہونے والے PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں ماکلور منڈل سے وابستہ TRS قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ ضلع نظام آباد TRS پارٹی صدر کے طور پر منتخب ہونے والے PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں ماکلور منڈل سے وابستہ TRS پارٹی کے قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ دے کر شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں ڈائریکٹر سوسائٹی چیئرمین B اشوک، TRS پارٹی کے قائدین نارائنا راؤ، MPTC امرت و دیگر نے شرکت کی۔ ایک نظر وقفے کی اور حضرت صوفی کمال خان، ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لو میرج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائیداد کا جھگڑا، حاسدین سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نہ لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن و سوتن سے چھٹکارا، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، پڑوسی سے جھگڑے، دکان و مکان کی بندش و شیکرن وغیرہ کے مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، فیس صرف 51 روپیے۔ روبرو ہیڈ پوسٹ آفس، اعظم روڈ، نظام آباد۔ سیل نمبر 8897811836۔ نوی پیٹ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی چیئرمین محمد معیز کے زیر نگرانی میں گورنمنٹ اسکول و جرنلسٹ کو سینیٹائزر و ماسک کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ نوی پیٹ منڈل کے مقام پر انڈین ریڈ کراس سوسائٹی چیئرمین محمد معیز کے زیر نگرانی میں TS ماڈل اسکول اور منڈل کے 58 گورنمنٹ اسکول و KGBV ماڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو سینیٹائزر کی فراہمی عمل میں لانے کے علاوہ منڈل سے متعلقہ الیکٹرانک صحافیوں کو سینیٹائزر ماسک کا حوالے کیے گئے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر MPP سنگم سرینیواس، سرپنچ TS سرینیواس نے شرکت کرتے ہوئے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیا۔ اس پروگرام میں ریڈ کراس ضلع کے GRC کوآرڈینیٹر ابا پور روی، منڈل شاخ کے وائس چیئرمین ویکٹیشور راؤ، ماڈل اسکول کے پرنسپل نوین کمار، اساتذہ، صاحبین و دیگر نے شرکت کی۔ దుప్పట్ల పంపిణీలో మాస్కుల పంపిణీ మా కార్మికులకు కూడా గ్రామ సఫాయి సిబ్బంది కార్మికులకు కూడా మాస్కులు పంపిణీ చేసి మొన్న 3-4 days బ్యాక్ శానిటైజర్లు కానీ బ్లడ్ డొనేషన్లో కానీ అంటే యాక్టివ్గా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 27 మండల్స్ ఉన్నాయి। 27 మండల్స్లో కూడా ఇంత యాక్టివ్గా ఏ మండలంలో ఉన్నటువంటి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కూడా పనిచేస్తుందని ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నా। దానికి ప్రత్యేకంగా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। सुनकट देहात में मुकामी सरपंच की जेर निगरानी में साबिक MP पंडित नारायण रेड्डी की दूसरी बरसी तकरीब का शानदार इनेकाद। सुनकट देहात में मुकामी सरपंच कदारी श्रीनिवास के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने साबिक MP पंडित नारायण रेड्डी की दूसरी बरसी तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश की। इस मौके पर मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने कहा कि सुनकट गाँव से ताल्लुक रखने वाले पंडित नारायण रेड्डी MP के ओहदे पर फायज होकर जिले निजामाबाद के लिए काबिल तरीन खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PACS वाइस प्रेसिडेंट चिरंजीवी, साबिक सरपंच नरसिम्हा रेड्डी, साबिक सरपंच
बी मोहन, टी संतोष, बी मलेश, भूमेश और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी जिले निजामाबाद के ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम से वाबस्ता साल 9 कैलेंडर के रस्म इजराई अमल में लाई। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में जिले निजामाबाद के ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम से वाबस्ता साल 9 कैलेंडर रस्म इजराई अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव, जिले बंजारा संगम प्रेसिडेंट चंदू नायक, असिस्टेंट वर्किंग प्रेसिडेंट तारा चंदन नायक, जिले वर्किंग प्रेसिडेंट टी नायक, जिले के जनरल सेक्रेटरी शिवाजी नायक, जिले के खजांची रमेश राठौर, जिले के वाइस प्रेसिडेंट गणेश यादव, तारा चंद नायक, जिले के मशहूर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इंदलवी मंडल नलावेली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मिनी एटीएम का दरपली ZPTC बाजवेडी जगन ने इफ्तिताह अमल में लाया। इंदलवी मंडल के मुकाम पर दरपली ZPTC बाजवेडी जगन ने नलावेली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मिनी एटीएम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ मुत्तहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारू मोहन, MVP रमेश नायक मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नलावेली सोसाइटी के अहाते में वाक़ मौज़े में मुक़ीम किसानों को दिक्कत न होने के लिए मिनी एटीएम का क़याम अमल में लाया गया है, जिससे किसान इस मिनी एटीएम से तकरीबन 5000 रुपए तक निकालने की सहूलत दी गई है। तमाम किसान इसी सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में MVP रमेश नायक, वाइस MP अंजैया, TRS मंडल सदर दास, जनरल सेक्रेटरी P श्रीनिवास, विंडो चेयरमैन गोपी, सोसाइटी CEO राजन्ना, नलावेली सरपंच N विजयलक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना मॉडल स्कूल्स में दाखिलों के लिए एलामिया जारी। तेलंगाना मॉडल स्कूल दाखिला टेस्ट 16 और 17 अप्रैल 2022 को मुनक़िद होगा। रियासत की मॉडल स्कूल्स में जमात शशम में दाखिले के अलावा अष्टम से 10वीं जमात में मखलूआ नशिस्तों को पुर करने के लिए ये टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। अष्टम से 10वीं जमातों में मखलूआ नशिस्तों को पुर करने के लिए 16 अप्रैल और शशम जमात में दाखिलों का टेस्ट 17 अप्रैल को मुनक़िद होगा। टेस्ट के औकात का 10 बजे दिन से 12 बजे दिन रहेंगे। टेस्ट का एलामिया जारी कर दिया गया। महकमे तालीमात की जानिब से जारी करदा दाखिला शेड्यूल के बमौजिब 8 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 8 और 9 अप्रैल से हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों के आगाज के पहले दिन स्कूल व कॉलेजेस में तलबा की बड़ी तादाद गैर हाजिर। 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज किया गया, लेकिन पहले दिन स्कूल व कॉलेजेस में तलबा की बड़ी तादाद गैर हाजिर पाई गई। कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 24 दिन के अरसे के बाद तालीमी सरगर्मियों को बहाल किया गया, लेकिन वक्फे से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दिए जाने की वजह से तलबा की तालीम के तय दिलचस्पी कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो तशवीशनाक है। महकमे तालीमात के अहदेदारों ने तफसीलात बताते हुए कहा कि कल पहले दिन जुमला सिर्फ 21.21% तलबा ने शिरकत की। सरकारी और खानगी मदारिस में जुमला 2,37,328 तलबा जेर तालीम है, लेकिन पहले दिन 50,335 तलबा ने ही शिरकत की। खानगी मदारिस में सिर्फ 16.91 और सरकारी मदारिस में 26.9% तलबा ने शिरकत की। तमाम मदारिस में शिरकत करने वाले तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तलबा को मास्क के साथ जमातों में शिरकत करने की हिदायत दी गई है। तमाम मदारिस में सैनिटाइजेशन किया गया है। कोविड कवायद पर अमलावरी की जा रही है। वक्फे से तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल किए जाने की वजह से तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत और महकमे तालीमात को सख्त फैसला लेना पड़ रहा है। साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी का शिकार अफराद के लिए राहत। मुतासरीन फौरी सेंट्रल साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 155260 और डायल 100 पर शिकायत करें। पुलिस कमिश्नर कियार नगराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर कियार नगराजू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर फ्रॉड का शिकार अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर का पोस्टर जारी किया। इन्होंने अवाम से अपील की कि मशकूक पैगामात पर जवाब न दे, साइबर क्राइम से होशियार रहे। अगर आप साइबर मुजरिमीन का शिकार होते हैं तो 155260 पर रब्त पैदा करें या डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर बढ़ते हुए साइबर क्राइम के खात्मे के लिए 155260 नंबर मुतारफ कराया है। महकमे पुलिस की जानिब से 24 घंटे कारकर्द हेल्पलाइन का आगाज किया गया है। साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी का शिकार मुतासरीन हेल्पलाइन नंबर 155260 पर रब्त पैदा करते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। OLX, फेसबुक, इंस्टाग्राम के नाम पर ऑनलाइन में धोखाधड़ी में बहुत इजाफा हो चुका है। सोशल मीडिया के इश्तिहार से
चौकस रहने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल मुहतात तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म की अशिया की खरीदारी व फरोख्त, लॉटरी, इंतहाई कम कीमत पर सूद, शरह कर्ज, बैंक खाता, बीमा के ताल्लुक से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बेशुमार वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। ऑनलाइन ऐप के जरिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स के जरिए साइबर मुजरिमीन बआसानी मासूम अवाम को निशाना बना रहे। ऑनलाइन शॉपिंग मुहतात तरीके से करना बेहद जरूरी हो गया है। साइबर मुजरिमीन आजकल अवाम को धोखाधड़ी के लिए जदीद तरीके अपनाए हुए है। साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी का शिकार मुतासरीन के लिए अब राहत की खबर है। 24 घंटे कारकर्द हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। सेंट्रल साइबर क्राइम पोर्टल हमेशा कारकर्द रहता है। रोजाना 20 से 30 शिकायतें वसूल हो रही हैं। जिले निजामाबाद में भी गुज़िश्ता कई सालों के दौरान कई अफराद अपनी भारी रकम से हाथ धो बैठे हैं। कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्हें हासिल हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस ने साइबर मुजरिमीन को सबक सिखाने का अहिया कर लिया है। शिकायत वसूल होते ही सेंट्रल साइबर क्राइम फौरी हरकत में आते हुए मुजरिमीन के खिलाफ अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। DRDO में अप्रियंट्स की जायदादें। DRDO रिसर्च सेंटर हैदराबाद ने इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में 150 अप्रियंट्स वैकेंसीज का ऐलान किया है। ये असामियां हैं: ग्रेजुएट अप्रेंटिस 40, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रियंट्स 60 और ट्रेड अप्रियंट्स 50। ग्रेजुएट अप्रियंट्स ब्रांचेस ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल, केमिकल क्वालिफिकेशन, BCom, BSc, BE, BTech मुतालिका मज़ामिन में 2019, 2020 और 2021 के ग्रेजुएट सी इसके लिए अहल है। माहाना 9,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस ब्रांचेस ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल, केमिकल अहलियत मुतालिका मज़ामिन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कामयाब 2019, 2020, 2021 में कामयाब उम्मीदवार ही अहल है। माहाना 8,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस, ट्रेनर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल अहलियत मुतालिका ट्रेड्स में ITI कामयाब 2019, 2020, 2021 के उम्मीदवार ही अहल है। उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल मुकम्मल होनी चाहिए। सिलेक्शन एकेडमिक मेरिट, तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। दरख्वास्तें 7 फरवरी तक ऑनलाइन रवाना करना होगा। उम्मीदवार तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहजा कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में तकर्रुरात के लिए 15 फरवरी तक दरख्वास्तों का अदखाल। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तदरीसी व गैर तदरीसी अहदों पर तकर्रुरात के लिए इलामी के तहत दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक तोसी की गई। क़ब्ल अज़ीद 2 फरवरी फॉर्म दाखिल करने आखिरी तारीख थी। कोविड-19 मॉनिटरिंग टास्क फोर्स कमेटी ने मुल्क भर में वबाई सूरत हाल के पेश नज़र नुमाइंदगी का जायजा लेकर तारीख में तोसी की सिफारिश की है। शहर के वुमेन्स कॉलेज में साबिक़ा MP पंडित नारायण रेड्डी की दूसरी बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के वुमेन्स कॉलेज में साबिक़ा MP व मशहूर मारूफ एडवोकेट पंडित नारायण रेड्डी की दूसरी बरसी तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मरहूम नारायण रेड्डी के फर्जंद अरविंद रेड्डी व बहू वासवी ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की और कहा कि MP के ओहदे पर फायज होने वाले पंडित नारायण रेड्डी की जानिब से जिले निजामाबाद की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशें करने का इजहार किया। ఇది మెయిన్లీ మా అమ్మయ్య స్టార్ట్ చేసింది ఫర్ గర్ల్స్ ఫర్ విమెన్కి ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ కొంచెం స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ దట్ హీ హాస్ డన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్. He was always for women's empowerment and emancipation, and he was very much for especially the people from the poor backgrounds, women from the poor backgrounds, to come up and get educated. सड़क हादसे में शदीद जख्मी शख्स को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रवाना करके डॉक्टर को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने की रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने की ख्वाहिश। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम हल्के में दीगर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जाने के दौरान सड़क पर टिप्पर के बाइक से टकराने के बाइस दोनों पैर टूटने वाले जख्मी शख्स को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अलावा इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए मुकामी पुलिस मुलाजमिन को हॉस्पिटल रवाना करके तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इजहार किया।
कोरोना से मुस्बित पाए गए एमएलसी के कविता की कोरोना से सेहतियाबी के लिए अवामी नुमाइंदों ने नालेश्वर देहात के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। कोरोना से मुस्बित पाए गए मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता की कोरोना से फौरी तौर पर सेहतियाबी के लिए सिंगल विंडो चेयरमैन एम हनुमंतलू व नायब सरपंच बी लक्ष्मण टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने एमएलसी के कविता की कोरोना से फौरी तौर पर सेहतियाबी के लिए नालेश्वर के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। కోలుకోవాలని ఈరోజు నాలేశ్వర్ అంజన్న సన్నిధిలో అంజన్నకు పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రతినిత్యం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజాసేవే తన హితంగా మలుచుకొని దేశ చరిత్రలోనే ఒక మహిళా నాయకురాలుగా నిలిచిరంటే మా కవితక్క గారు. सैयद साजिद कांग्रेस कामरेड्डी नायब सदर मुंतखब साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दी इन्हें मुबारकबाद। साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सैयद माजिद को नायब सदर टाउन कांग्रेस पार्टी मुकर्रर किया है। मोहल्ला इस्लामपुरा कामरेड्डी में मोहम्मद वसीम कांग्रेस कायद की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में सैयद माजिद की बेहतरीन खिदमात का इतराफ़ करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी की गई। इनके अलावा कामरेड्डी के अखलाती कायदीन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए रुकन बल्दिया सैयद अनवर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनक़्क़िदा शुद्धी इंतख़ाबात में कांग्रेस भारी अक्सरियत से इक़्तिदार हासिल करेगी और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलाई जा रही रुकनियत से में खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाने से 2 लाख रुपए का इन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा। इन्होंने रुकनियत को इत्मीनान बख्श करार दिया और तरक्याती काम अंजाम दिए गए। सैयद अनवर अहमद ने बताया कि मोहल्ले के नौजवानों की कसीर तादाद ने मोहम्मद अली शब्बीर पर एतमाद का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खदीर अतीक मुज्जू इम्तियाज सिराज वसीम एजाज इमरान व दीगर मौजूद। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कल इस वार्ड के नौजवान कायद मेरी मुराद मोहम्मद साजिद से सैयद साजिद से जिनको आले जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कांग्रेस पार्टी का टाउन नायब सदर मुकर्रर किया है। इस खुशी के मौके पर इस महल्ले के नौजवानों ने और ख़ास तौर पर वसीम ने अपनी मेहनत और खुशी का इजहार करने के लिए वसीम साहब अपने साथी मेरी मुराद सैयद साजिद की गुलपोशी के साथ साथ उन्होंने एक जहन में एक बात लाई कि ना सिर्फ साजिद की गुलपोशी बल्कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज़ कायदीन की और साथ ही साथ गांजा व नशावर अशिया से पाक रियासत का क़याम अमल में लाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने किया इंकशाफ। डीजीपी के अहकामात के मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने महकमे आपाशी के ज़ेरे निगरानी में पुलिस दफ्तर में इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि ज़िले निज़ामाबाद आर्मूर बोधन डिवीज़न के अहाते में वाक़े तमाम मुक़ामात पर गांजा व नशावर अशिया की फ़राहमी को रोकने के लिए पुलिस मुलाज़िमीन की जानिब से अहम मुक़ामात की शनाख्त करके व दीगर इस्लाम महाराष्ट्र के इलाके से मुंसलिक रोड पर चेक पोस्ट क़याम अमल में लाकर गांजा व दीगर नशावर अशिया की फ़राहमी को रोकने का इजहार किया। बोधन मुस्तक़बिल मिनी स्टेडियम के क़याम के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात व नुमाइंदगी। बोधन मुस्तक़बिल पर खेल की फ़रोग़ के लिए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात करते हुए 5 करोड़ के फंड से मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए याददाश्त हवाले की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से बोधन में स्पोर्ट्स की फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है। इसके तहत इनकी जानिब से कब्ल में काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्राउंड का क़याम अमल में लाते हुए क्रिकेट मुकाबलों का भी इनेकाद अमल में लाया जा चुका है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 9 मुंतखब जिले टीआरएस सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLA शकील आमिर, बेगाला गणेश गुप्ता, आकुला ललिता, TSRTC चेयरमैन बागेड़ी गोवर्धन ने दी मुबारकबाद। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की बोधन में मिनी स्टेडियम के क़याम के लिए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात व नुमाइंदगी। साबिक़ा MP पंडित नारायण रेड्डी की बरसी के मौके पर शहर के वुमेंस कॉलेज धर्माराम में तक़रीब का इनेकाद व पेश की गई इन्हें ख़िराज अक़ीदत। मरकजी बीजेपी हुकूमत के पेश करदा बजट सिर्फ अमीरों के लिए फायदेमंद, गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी।
सदर जिले टीआरएस की अरसे से जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब मुलतवी, नई तारीख का जल्दी होगा ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।